स्वतंत्र भाई और बिमला जी और साथी बहनों भाइयों, I'd like to start up for Saturday evening. So this is a continuation of our April session. And in this April theme, it is myself, it is Ashok, and it is Harshad. Ishnivar, I forgot to appreciate their contribution and thank them for the efforts they make while I'm not here. So thanks again, Ashok and Harshad, for making that. I miss you. But so naturally, in these two sessions, I wanted to take you to a point where you have a much better understanding about who you are, what Jain philosophy is, and what we can really get out of it. So we covered some aspects last time, and some of you were not here. So I will briefly recapture what we covered last time, and then go on to the second part, which is really phenomenal. So uh, these are the you already done the first part, welcome and next exercise, and then you heard the Preksha meditation session and you experienced it. And hopefully this time, those who were here last time, when you compare, this time was maybe a little bit better for you last time, I don't know. But it only, I particularly wanted you to follow this 30 minutes of meditation because you would not appreciate its true meaning and true beauty until you have done it for many, many times. So just trust me on that and continue to do it. Last time we basically talked about what does Preksha mean? Preksha means एकाग्रता. Preksha means गहराई से अनुभव करना. And of course, we explained the terms मूलबंध and stuff like that, and we were going up and down. When the movement from Gyan Kendra to change to Shakti Kendra and Shakti Kendra to Gyan Kendra is to activate all the Mool chakras. That's what we are doing. So in fact, it's a study in itself. This Preksha meditation, so you exercise the right this minute. It is itself a big study. So as you take the time to dive into it, I would ask you and encourage you to whatever reference you find, and there is plenty of information available on the internet about Preksha meditation. Kindly take the time to read it and try to digest it. Just remember this. This Preksha meditation is a lifelong undertaking. This is not something you did now and forget about. From now on to the end of your life, every day you have to do it. Because every day, इसमें क्या था? इसमें शुरू में जो aphorism था, वो क्या था? चित्त की शुद्धता के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए, मैं ये प्रेक्षा ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ. Which means only when you are doing the Preksha meditation that you are able to clarify, purify the ray of consciousness that is coming from your soul to your body. That ray of consciousness is what we are calling Chit. When you don't do this, when you don't take this vow, when you don't go through these steps, you don't clear up that ray of consciousness. It becomes muddy. And who muddies it is the mind. So just remember that. और इसमें जो the important thing to remember is कि अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी लगातार हर समय अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है. ये इट्स अ फैक्ट. पर सवाल ये कि हमें वो समझ नहीं आता कि अनुभव है क्या. What is that? What does that mean? आत्मा का अनुभव करना. The only time you experience the true Atma, true soul, it was in the last few seconds of this meditation. उस आत्मा को अनुभव करने के लिए your mind has to be absolutely शांत. Your body has to be shant. Your indriyas have to be shant. Only then that connection between you and your soul develops. That is Atma का अनुभव. वो आप इस मेडिटेशन से करते हो, बहुत कम सेकंड्स के लिए करते हो,
This is why I insist that you do it, because until you get there, that is the true bliss. That is the true bliss with what we call anand in Hindi, what we call sukh in Hindi. That true sukh and true bliss is when that happens, when your mind is silent, when your body is silent, and there is no other nirvikalpta ki avastha hai, meaning there are no thoughts in your mind. That is the essence of feeling of the connection with your soul. That's why it's important to do. So, an individual spiritual, it's a very profound statement. Your spiritual journey begins with this meditation and ends with this meditation. How does it end with this meditation? पिछली बार हमने सवाल उठाया था कि लाइफ का पर्पस क्या है, उसके बारे में थोड़ा और आज बात करनी। I just won't spend much time, but remember कि अगले 25 साल में उनको इस सेंटर को कहाँ लेके जाना है। It needs to become nationally recognized. We should have diverse membership. We should have members like you and I who are knowledgeable about Jainism, who can tell people what its significance is, because you have experienced it. Right now, you haven't experienced it. So you can't tell people. You just come here, listen to some teaching, you go back and you imbibe some pieces of it. But only when you truly experience it can you be the ambassadors of the spirit of Jainism, of the essence of Jainism that you can spread to the community. But इस जर्नी पे embark करने के लिए, इस विजन पे embark करने के लिए, you have to transform yourself and feel what Jainism is. और जो मैं आज बात करूँगा, होगी, if that doesn't transform you, then nothing will. If what I will talk to you about today, if that honestly does not transform you, then nothing will. So we defined some common terms. I briefly explain it to you again. The term darshan means vishwas. Darshan also means shraddha. Darshan also means drishtikon. Darshan also means pratiti, meaning feeling, emotion. That's all involved in darshan. Dharma means applying that philosophy in practice. That's why we do the rituals, prayers, conduct, daily practices, etc. That comes under dharma. Or इसमें मन is an important part. This state that we are in, this human state that we are in, all of us sitting in this room, is the most evolved state of the soul. इससे ज़्यादा soul की evolution नहीं होती, इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई मनुष्य भाव से अगर आपको आगे जाना है spiritual journey में, तो you have to come back to this state. It is only from here that you can eventually achieve salvation. No Tirthankar achieve salvation without coming to the human state. तो इसमें ये सबसे इवॉल्व क्यों है, क्योंकि इसमें इंद्रियां तो है ही है और मन भी है, and it combined, the man and the indriyas combined together allow you to see who you really are. ये प्रेक्षा मेडिटेशन में हमने आखिर में वंदना किसको की थी? What was the last thing when you say वंदे? सत्यम. किसी आचार्य को वंदना नहीं की, किसी तीर्थंकर को वंदना नहीं की, किसको वंदना की? सत्यम, सत्य को वंदना. तो सत्य क्या है? What is it? सत्य जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है. सत प्लस आई. सत और प्लस आई को मिलाओ सत्य. आई माने देखना, जानना, और सत्य माने सत्ता. Who am I? तो वो जो सत्य की बात ये कर रहे हैं, that सत is the soul. कि I am that soul, which is pure, which has infinite knowledge, it has infinite bliss, it has infinite wisdom, infinite peace, infinite qualities. उस सत्य को मैं आज वंदना करता हूँ क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया. आज पहली बार मैंने अपने सत्य को, who I really am, इसको जाना, पहचाना, इसकी तरफ, ताकि मैं इसको पूरा अपने आप को उस फॉर्म में लेके आ सकूं. इसलिए मैं ये वंदना कर रहा हूँ कि हे प्रभु,
मुझे वो सब शक्ति दी है ताकि मैं इस सत्य को रियलाइज कर। दैट रियलाइजेशन ऑफ द सत्य इज व्हाट वी कॉल nirvana, or liberation, getting away from this body income. मन is deeply connected to karma, so जितने भी आपके विचार उठते हैं ये सब मन में ही उठते हैं, और ये विचार जो प्योर कॉन्शियसनेस की रे आत्मा से आपके पास आती है बॉडी की तरफ, ये उसको they just make it, I mean, they spoil that pureness of the soul because of these vichars, bhavnas that are continuously acting up and down. And the only way to control man is through spiritual practice. Through this Preksha meditation we just did. इस वे आखिरी स्टेप में हमने मन को बिल्कुल शांत कर दिया, और धीरे धीरे वो 4 स्टेप के माध्यम से आप वहां तक पहुंचे, और उस अमन की स्थिति में आपको वो आनंद आएगा जिसकी हम बात कर। Just as I explained to you, is a ray of is a ray of consciousness, and spiritual practices like Preksha meditation, ho, chahe swadhyaya ho, chahe tap ho, chahe sanyam ho, chahe samta ho, they are all means to purify the chitta. In the context of human life, we talked about ये बहुत रिसर्च का मैंने अभी भी हिंट भी आपको दिया, क्योंकि इसी अवस्था से आप अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग में आगे बढ़ सकते हो, और किसी और 3 गतियों में से नहीं जा सकते, इस मनुष्य गति में से ही वहां जा सकते। So for spiritual life, whatever purpose should be, we talked about it last time. We will reflect on it little bit later again, but hopefully आप ऐसा करना कि आपके पास कागज पेंसिल है सबके पास। Harshad, better make sure that everybody has a paper and pen, because when I launch in this next part, there would be question. I am positive there will be questions in your mind. I would ask you to write those questions down, because this part that I will describe to you now has to be heard in continuity. उसमें अगर मैं बीच में आपके सवालों के जवाब देना शुरू करूँगा तो आपकी वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भंग हो जाएगी, और मेरी जो कॉन्टिन्यूटी की थॉट प्रोसेस है वो भी भंग होगा, इसलिए उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आई विल टॉक एंड यू जस्ट लिसन, एंड एट द एंड देन यू कैन आस्क व्हाटएवर क्वेश्चन। The most important thing is we define the term moh. The moh is a delusional state, a state in which we lose sight of reality. मतलब हमारी जो मान्यता है, हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो फेथ है, वो उल्टा होता है। दैट इज मोह। जो असली रियलिटी है उसको तो हम समझते हैं कि ये फेक है, जो फेक है उसको हम समझते हैं कि रियलिटी। व्हाट डज इट मीन इन कॉमन टर्म? कि हम अपने बॉडी को तो समझते हैं कि ये है मेरी असलियत, और मन और अपनी आत्मा को तो हम समझ ही नहीं पाए। आत्मा से तो कभी संबंध ही नहीं हुआ, उसको देखा ही नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो हमने समझा कि जो भी इस शरीर से संबंधित है, जो मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, जिसको चख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, दैट्स रियलिटी। दिस इज मोह। मोहनी कर्म के हमने कहा कि भाई वैसे तो 8 कर्म की बात की, 8 कर्मों में 148 प्रकृतियों की बात की। हमने कहा कि आपको सिर्फ एक ही कर्म पे फोकस करना है, जिसका नाम है मोहनीय कर्म। अगर मोहनीय कर्म को कंट्रोल कर लोगे, समझ लोगे, तो बाकी कर्मों की समझने की चिंता की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाए। इससे मोहनीय कर्म के हमने कहा कि 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो लास्ट टाइम वी स्पेंट मोस्ट ऑफ आवर टाइम अंडरस्टैंडिंग दर्शन मोहनी। तो दर्शन मोहनी अब क्या करता, क्या है ये दर्शन मोहनी? ये हमारे ज्ञान का नाश करता। ये जो इल्यूजन है कि मैं बॉडी हूँ, जो असली हमारा ज्ञान है, ये उसका नाश कर देता के मतलब ये मिथ्या ज्ञान पैदा करता है, और वो मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर इस विश्वास को दृढ़ कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है कि मैं एक्चुअली बॉडी हूँ। क्योंकि मैं आप ये सोचते हो कि जो चीज मैं आंख से देख ही नहीं सकता, जो चीज मैं छू नहीं सकता, वो सत्य कैसे हो सकती है? ये आपके अंदर भावना बहुत गहरी है, अंदर है, बट दिस इज मोह, दिस इज दर्शन।
दर्शन मोनी हमारे बोध का नाश, ज्ञान का नाश करता है, मतलब सम्यक ज्ञान का नाश करता है, मतलब मिथ्या ज्ञान, विपरीत मान्यता को पैदा करता है। दैट इज दर्शन। ऐसा इस स्थिति में ऐसा हो जाता है कभी कभी, कितना देखो ये मोनी कर्म का कितना तीव्र उदय होगा जब आदमी ये सोचना शुरू करे कि भाई जहर में सुख है। यानी एक आदमी इस लाइफ में जीते जीते उसकी ऐसी स्थिति बनी कि उसको ये थी जो मेरी पेन और सफरिंग मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं जहर खा लूं तो कम से कम फील और सफरिंग से खत्म हो जाऊं। ऐसी भावना तुम्हारे अंदर पैदा करता है, क्योंकि उस स्टेट में यू डोंट वांट टू डील विद दैट पेन एंड सफरिंग, सो यू वुड रादर ईट पॉइजन रादर देन फेस। ये दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय का एग्जाम्पल। और यही दर्शन मोहिनी है आपके अंदर ऐसी सोच पैदा करेगा कि मैं आग में कूद जाऊं, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं, अपने आप को किसी न किसी तरह से मार दूं ताकि इसको मुझे सहन ना करना। ये है उल्टी मान्यता, ये है दर्शन मोहिनी। इट इम्पैक्ट्स आवर वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो वर्ल्डली लाइफ के एग्जाम्पल हमने शेयर किए। तो जैन फिलॉसफी के हिसाब से तो दर्शन मोहिनी जब हमारी मान्यता को उल्टी करता है और हमें ये विश्वास पैदा करता है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा तो मैंने देखी नहीं। किसी ने, ये लोग कहते रहते हैं आत्मा, किसने देखी आत्मा, किसी ने, किसी ने टच नहीं की, कोई मुझे दिखा नहीं सकता, मेरे सवालों का जवाब दे नहीं सकता, तो ये तो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पर जैन फिलोसफी ये कहती है कि चाहे आप किसी फॉर्म में भी रहे हो, from Nirodha Avastha, which is the lowest evolved state of the soul, to the Siddha Avastha, which is the highest evolved state, आत्मा के गुणों में, आत्मा के प्रदेशों में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है जैसा कि है, जो कि रियलिटी। तो इस परम सत्य के बावजूद भी दर्शन मोह के उदय में हमें ये बात समझ नहीं। तो फिर हमने इसके बात की कि सिद्धालय में प्योर आत्मा है जितने कर, यानी ये जो सिद्धालय में जो ये आत्मा पहुंची है वो भगवान महावीर की थी, बाकी 23 तीर्थंकरों की थी। वो आत्मा इतनी कर्मों के बीच में से अनंत काल के उतार चढ़ाव में होने के बाद 84 लाख योनियों में वो भगवान के वहां पहुंची। और वो आत्मा वैसी की वैसी सुरक्षित रही इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस। उसी तरह जैसे भगवान का निर्वाण होके वो सिद्धालय में पहुंचे, ये जान के, क्या जान के कि मैं प्रभु हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, अप्रभावी हूँ। इस दृढ़ विश्वास के नाम, इस दृढ़ विश्वास का नाम है दर्शन मोह का पूर्णतया अभाव। जब उन्होंने ये सत्य को रियलाइज किया और दर्शन मोह को टोटली कर दिया, उसके बाद से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। और जो जिसके बारे में आज हम बात करने चाह रहे हैं, उसको उन्होंने धीरे 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 काटा और तब इवेंचुअली he achieved liberation. So when this state of liberation is achieved, it means we have achieved सम्यक दर्शन। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाए आपको कि मैं आत्मा हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, अप्रभावी हूँ, जिस दिन आप पूरी तरह से रियलाइज कर लो, उस दिन आप ये कह सकते हो कि मुझे सम्यक दर्शन। बट अंटिल देन मिथ्या दर्शन। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हो कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, और आप अपने आप को उस दृष्टि से देखना शुरू करते हो, तो जो हमारा स्पिरिचुअल लैडर है ना 14 गुण स्थानों का, उस लैडर में आप चौथे लैडर पे पहुंचते हो। दैट इज द फोर्थ लैडर। 14 है, 14 स्टेप। और उससे पहले स्टेप से और चौथे स्टेप के बीच में घूमते रहे। जैसे कि आज हमारी स्थिति ये पहले और चौथे स्टेप में घूमने वाली, बहुत कम अरसे के लिए हम ये चौथे स्टेप पे रहते हैं। तो इसको जब ये दृढ़ हो जाता है हमारा विश्वास कि मैं ये
आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, उस वक्त हम इसको कहेंगे इन स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी शायद सम्यक। तो सम्यक दर्शन को हम सम्यक भी कहते हैं। और वो शायद कब हो जाता है, स्टेबल कब हो जाता है, परमानेंट कब हो जाता है, जब ये फिर इसके बाद आप में ये शंका उठती ही नहीं कि मैं आत्मा नहीं। जब ये शंका पूरी तरह से खत्म हो जाए, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू जर्नी स्पिरिचुअलिटी। अस्थि, तो इसको एक बार फिर से दर्शन वो को देख लें कि अस्थि से ये क्या है और नास्ति से ये क्या है। पॉजिटिविटी इसको कैसे एनालाइज करते हो और नेगेटिवली कैसे कहते हैं। अपनी प्रभुता स्वीकार नहीं करना, अकर्तापने में सुख नजर नहीं आना, अभोक्ता हूं ऐसा नहीं मानना, मैं स्वयं से सुखी होता हूं ऐसा नहीं मानना, ये दर्शन मोह की स्थिति है। और नास्ति से कैसे कहेंगे, मैं तो पर से सुखी होता हूँ। इनके ऑपोजिट लोगों में जब ये विश्वास है कि मैं अपने से सुखी नहीं होता, मुझे पर सुखी कर, चाहे वो पर संधि जी हो, चाहे वो पर आचार्य जी हो, चाहे वो पर मंदिर में जाके हो, चाहे कोई देवी देवता हो, ये पर जो है, someone other than me gives me the happiness that I need। पर मेरे को दुखी ये हमारा विश्वास क्या रहता है इस वर्ल्डली लाइफ में हमेशा कि पर मेरे को दुख कर देगा, दुखी देगा, ये ले लेगा, ये मेरा वो छीन लेगा, इसको बता दे ये मेरे ये कर देगा। ये सब believing in somebody else interfering and influencing your life, that is darshan moh। भगवान या आचार्य मुझे सम्यक दर्शन या ज्ञान चारित्र दे देंगे, ये भी दर्शन मोह। कोई देवी की कृपा से मेरे कल्याण होगा, ये भी दर्शन, ऐसा नहीं। तो ये है सम्यक दर्शन, सब ये दर्शन मोह समझ में आ गया पूरी तरह से। अब इससे आगे आगे बढ़ेंगे। Now let us understand what चारित्र मोह। चारित्र मोह क्या करता है? चारित्र मोह आपकी में वीतरागता का अभाव कर। वीतरागता मतलब when you can win your राग और द्वेष से जब आप मुक्ति पा लेते हो, उसको वीतरागता की स्टेट कहा जाता है। तो ये जब तक चारित्र मोह है, आप में वीतरागता नहीं आ सकती। चारित्र मोह वीतरागता का अभाव करता है, मीनिंग आपके असली आनंद का, आपके असली सुख का, आपकी असली निर्विकल्पता का, निर्विकल्पता मीनिंग थॉटलेस स्टेट, उस स्टेट का ये अभाव पैदा करता है, मतलब उसको नहीं आने देता। चारित्र मोह के इन्फ्लुएंस में ये चीजें नहीं आती। और चारित्र मोह इंसान है क्या? आत्मा में स्थिर। तो हमने ये कहा कि जब आपने ये मान लिया कि मैं तो आत्मा योग हूँ, इन्फिनिट क्वालिटी वाला, तो दर्शन मोह चला गया। अब उसी अवस्था में अगर स्थिर हो गए तो चारित्र मोह। और उस अवस्था में स्थिर नहीं हुए तो चारित्र मोह प्रेजेंट। तो उस अवस्था में ये जो प्रेशर मेडिटेशन का हमने किया था, उस अवस्था में कब पहुंचे थे? वो आखिरी कुछ सेकंड के लिए वो निर्विकल्पता की स्टेट थी। वो बहुत क्षण, बहुत छोटे से क्षण के लिए थी। वो है आत्मा की स्थिति। उस स्टेट में आपने चारित्र मोह को दूर किया। और वरना तो चारित्र मोह की स्टेट में रहती हो, दर्शन मोह की स्टेट में रहती हो और चारित्र मोह की स्टेट में। अब ये यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं कहना चाहिए, ये सब सत्य के ही अलग अलग अंश है। एक ध्यान रखना कि श्रद्धा में, जिसको हम फेस कहते हैं, श्रद्धा हमेशा पूरी होती है। ये नहीं कि आधी श्रद्धा होगी और आधी श्रद्धा होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी माँ है, तो आपको पूरा विश्वास है कि ये मेरी माँ है। ये तो नहीं कहते कि वो 50% मेरी माँ है, 50% नहीं होगा। है तो पूरी है, और नहीं है तो नहीं। तो जब आपने ये कह दिया, जब आपने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो वो पूरा ही माना। ये नहीं कि 10% आत्मा हो और 90% शरीर हूँ।
आत्मा श्रद्धा हमेशा पूरी होती है, अधूरी नहीं होती। ये जो रिलेशनशिप है जिसकी मैंने अभी बात की, ये सब रिलेशनशिप में यही बात लागू करती है। ये मेरा भाई है तो 100% भाई, ये मेरा पिता है तो 100% मेरा, ये है श्रद्धा। तो उस आदमी के प्रति जागते सोते जागते, उठते बैठते, गुस्से में, उनमें वो जो श्रद्धा है कि ये इंसान मेरा पिता है, वो बदलती नहीं, कभी नहीं बदलती। जैसे रिलेशनशिप्स में श्रद्धा इस तरह से नहीं बदलती, इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में वंस यू एक्सेप्ट कि मैं आत्मा हूं, तो वो फिर बदलता नहीं। और जब वो स्टेट आती है तो उसी को हमने शाही सम्यक तो कहा, असली सम्यक दर्शन कहा। दैट इज असली सम्यक दर्शन। अब मुमुक्षु कौन है? व्हाट डज मुमुक्षु मीन? मुमुक्षु मीन वो सब लोग जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। जैसे हम लोग सब सारे यहाँ बैठे हैं, हम सबका एक ही ड्रीम है कि भाई हमको मोक्ष मिले, तो हम अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं। जिसको यही नहीं पता कि मोक्ष क्या है, वो उसके पीछे जाना ही नहीं चाहता, तो उनको हम मुमुक्षु नहीं कहेंगे। तो मुमुक्षुओं के मन में ये जो सुनने के बाद जो मैंने अभी आपसे कहा, उनके मन में अक्सर एक सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि भाई वो पूछते हैं, वो जो भी उनको बता रहे, चाहे वो आचार्य हो, पंडित हो, उपाध्याय हो, जो भी हो, जो भी उनसे ज्यादा ज्ञानी है, उनके सामने ये मुमुक्षु जाके सवाल पूछता है कि अरे भाई, जब मैंने ये जान भी लिया, मान भी लिया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये उल्टे सीधे विचार मेरे मन में उठते क्यों? ये क्यों नहीं चले जाते? मैं तो मान लिया, जान भी लिया, अभी उठ क्यों रहे? तो उसका जवाब ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा जानना और मानना श्रद्धा या दर्शन मोह से संबंधित। और ये जो उल्टे सीधे विचारों का आना है, ये चारित्र मोह से संबंधित। और जरा इनकी इंटरप्ले देखो, दर्शन मोह का और चारित्र मोह का, कि जब आपने ये मान लिया कि मैं प्योर हूँ, तो दर्शन मोह चला गया। चारित्र मोह अभी प्रेजेंट है, पूरी तरह से प्रेजेंट है वो चारित्र, ये मानने के बावजूद। और ये दोनों बहुत अलग अलग अवस्थाएं हैं जिन्हें सही समझना बहुत आवश्यक है। तो आप कहोगे कि तुम्हें क्या पता है कि ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, और अगर मुझे वाकई पूरा विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरी सब चीजें सुधर जानी चाहिए। तो देखो, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आदिनाथ भगवान को तुम जानते हो। आदिनाथ भगवान को शायद समझ तो था जब उन्होंने शुरू किया अपनी जर्नी, तो उनको सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक राज्य करने की भावना उनके अंदर प्रेजेंट। ही वांटेड टू रूल फॉर 83 लाख पूर्व। शारीरिक सम्यक तो होने के बावजूद क्यों थी वो गलत? चारित्र। अगर आदिनाथ भगवान कहते जिनको उसी भाव से मोक्ष में जाना है, उनके अंदर ये चारित्र मोह इस तरह की भावना प्रोड्यूस करता है, तो हम कौन से खेत की मूली? तो दूसरा एग्जाम्पल लो, भारत और भरत और बाहुबली। भरत में शायद समय भी 6 खंड के राजा होने वाले, इतना जानने के बाद, सम्यक दर्शन पूरा होने के बाद उतर पड़े लड़ाई में अपने भाई के साथ। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शनी थे, जानते थे मैं आत्मा हूँ, प्योर हूँ, ब्ला 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 ब्ला, फिर भी लड़ाई। ये दर्शन है। तो अगर उन जैसे लोगों को ये सब हो सकता है, तो हम हमारे दिलों में ये एक्सपेक्ट कर लेना कि अगर कोई सम्यक दर्शनी है, अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है, तो वो कैसे ये व्यापार कर रहा है, ये क्यों गालियां देता कर रहा है, ये क्यों ये काम, ये हो नहीं सकती, ये ढोंगी है। कहोगे कि नहीं कहोगे कि ढोंगी है? क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि दर्शन मोह और चारित्र मोह अलग अलग। आत्मा में स्थिरता ना होने से कुछ ना, अगर आपका उपयोग आत्मा में अगर नहीं लगा हुआ, तो कहीं तो लगा हुआ है ना, तो कहाँ लगा हुआ?
उसका कुछ ना कुछ करेगा वो, चाहे वो खाने का हो, चाहे पीने का हो, बीवी बच्चों का हो, व्यापार करने का हो, शादी करने का हो, ये सारी जो संसारी अवस्थाएं हैं, आप उसमें उसमें लगे हुए हो, आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है, ये सारा चारित्र मोह है, क्योंकि आपका उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं। तो दर्शन मोह तो हो गया, आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, बट अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें आफ्टर रिमूविंग दर्शन मोह, अगर जब आप जब आपने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ और मान लिया, तो जो लोअर स्टेज ऑफ प्योरिटी, मतलब एक सेकंड, कषायों के बारे में तो आपको मालूम है, कषाय 4 किस्म की कषाय, राइट? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय है। ये स्टेट्स ऑफ इमोशन थी, इमोशनल स्टेट, पर इनकी इंटेंसिटी जो ये इन कषायों की 4 इंटेंसिटी, उसके बारे में भी आप जानते हैं। अनुतान बंदी है, अप्रत्याख्यान है और संज्ञान। ये इंटेंसिटीज हैं इन इमोशंस की, जिसको हमने कहा क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो ये इनको अगर एक फिजिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो इंटेंसिटी का मतलब क्या, कि जैसे पत्थर की लकीर वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको आप मिटा नहीं सकते। तो वो वाली जो स्टेट है उसको हम कहते हैं अनुतान बंदी कषाय, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे मान की हो, चाहे माया की हो, चाहे लोभ की हो, जिसमें हम सब हैं। by the way, हम सब इस अनुतान बंदी इंटेंसिटी वाली कटाई स्टेज में है, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ। और उससे कम हुआ है तो फिर अप्रत्याख्यान होगा, उसके बाद फिर प्रत्याख्यान होगा और फिर संवरण। तो अप्रत्याख्यान वाली स्थिति कौन सी है, जिसने वो लकीर जो वो चौक से किसी ने पत्थर पे लकीर लगाई जो कि मिटाई जा सकती, उससे भी जो कम इंटेंसिटी वाली स्टेट आई तो वो रेत के ऊपर जो लकीर है उसकी स्टेट होगी, क्योंकि जो रेत के ऊपर की लकीर है वो तो धीरे से मिट जाती है। और जो सबसे प्योर, सबसे कम इंटेंसिटी वाली है, वो ऐसी है जैसे पानी के ऊपर लकीर, तो पानी के ऊपर लकीर बहुत ही हल्की है, तो बहुत हल्की से पत्थर वाली लकीर पत्थर से की गई को हम अनुदान बंधी स्टेट कहते हैं इस कषाय की, जो कि हमें प्रेजेंट है। तो जब ये दर्शन वो पूरा हो जाता है, जिस दिन भी only time we are not in the Anudan Bandi stage for a few seconds or for a few minutes, when you get out of it and you're truly focusing on कि मैं प्योर आत्मा हूँ, उस स्टेट में जब आप आते हो तो उसको हम लोअर स्टेट ऑफ प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि उस स्टेट में आपने अनुदान बंदी वाली जो कषाय थी सिर्फ उसको खत्म किया, बाकी की 3 बाकी और उसमें बची हुई। तो अनुदान बंदी स्टेट ऑफ इंटेंसिटी goes away when your belief becomes perfect कि मैं प्योर आत्मा हूं। तो आफ्टर रिमूविंग दर्शन मोह एट लोअर लेवल ऑफ प्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, भरत भरत को 6 खंड जीतने का विकल्प आया, उससे ऊपर की अगर भूमिका हुई इसका मतलब उन्होंने एक स्टेट और पार कर ली और अनुष्ठान बनने के बाद अप्रत्याख्यान वाली स्टेट में आए, फिर उसके ऊपर की भूमिका उस स्टेट में परिग्रह छोड़ने का भाव आए, और उससे अगली स्टेट में जबकि वो प्रत्याख्यान वाली स्टेट में आए, उस स्टेट में आने के बाद वस्त्र त्याग करने का भाव आए। उससे पहले जब तक ये 3 कषाय की इंटेंसिटी, these 3 intensities, until you win over those, सिर्फ तब तुम्हारे अंदर ये भावना पैदा होगी मैं ये कपड़े क्यों पहने हुए। तो जिसको हम ट्रू मुनि अवस्था कहते हैं, वो मुनि अवस्था उन लोगों की है जिन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। 3 कषाय चौकड़ी का मतलब ये 3 इंटेंसिटीज थी, उनको जब उन्होंने खत्म कर लिया तब उनके अंदर, तब उनकी असली मुनि अवस्था आई। अब सवाल यह है कि
सवाल अब ये उठता है कि संपूर्ण सुखी होने के लिए सबसे पहले श्रद्धा पद्धति की जरूरत है या आचरण पद्धति? क्या सोचते हो? आचरण, ठीक। और कोई आचरण के संबंध? सबसे पहले सुखी होने के लिए श्रद्धा पकड़ने की जरूरत है या आचरण की? श्रद्धा। तो श्रद्धा करने वाले हाथ खड़ा करो, और आचरण करने वाले बाकी के नहीं। वही देखो, ऐसा है कि अगर श्रद्धा ही नहीं हुई तो आचरण कैसे होगा? दोनों जरूरी है। श्रद्धा, द फर्स्ट इज श्रद्धा। श्रद्धा मीनिंग दर्शन मोह का अभाव। श्रद्धा मीनिंग परमानेंट बिलीव कि मैं पूर्ण आत्मा हूं, पवित्र हूँ, अनगिनत गुण है मेरे में, गुणी हूँ वगैरह। तो देखो, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वी ऑल मेक कि हम अपनी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में वी स्टार्ट वर्किंग ऑन चेंजिंग आवर कैरेक्टर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग आवर बिलीफ। श्रद्धा तो हुई नहीं, तो तब भी क्या, संगत भी किया, ये किया, फलाना किया, ढमकाना किया। इसका थोड़ा तो आपको फायदा होता है, पर फायदा इससे ज्यादा होता है क्योंकि श्रद्धा अभी इसमें है, श्रद्धा अभी आपकी पक्की नहीं। तो ऑल एफर्ट्स विदाउट श्रद्धा आर नॉट वेरी इफेक्टिव, चाहे वो तप हो, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो संयम हो, चाहे वो वंदना हो, चाहे वो अपरिग्रह हो, जब तक श्रद्धा नहीं। व्हाई इज दैट? क्योंकि दर्शन और चारित्र मोह में 36 का आंकड़ा, ये टर्म सबसे पहले मुझे प्रोफेसर मैंने 36 के आंकड़े की बताई। ये इनको बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। जब तक चारित्र मोह कम नहीं होगा तब तक आपकी असली, इसमें जब तक दर्शन मोह कम नहीं होगा तब तक आपकी ये जितने भी आप रिचुअल्स करते हो उसका पूरा फायदा आपको नहीं। अब इसके लिए देखो, ये ऐसा क्यों है कि दर्शन हैज टू डू विद बिलीफ व्हाइल चरित्र डील्स विद आत्मा में लीनता और स्थिति। जब आपको बिलीफ हो गया कि मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, और उसमें अगर आपने उस पर आप स्थिर नहीं रहे और चीजों में करते रहे तो कर्म को मानते रहे। तो एक तरफ तो आपने कर्म को कम काटने के लिए चलो तप किया, संयम किया, और दूसरी तरफ बांधे भी उसी तरह से क्योंकि आत्मा तो स्थिर हुआ ही नहीं। तो उसके जरूरत है वृत्तियों को बदलने की, आदतों को वश में लाने की, मन पर काबू पाने की। इन सब को करने में, यानी चारित्र मोह के जाने में बहुत टाइम है। कितना समय? 5वें गुण स्थान से 12वां गुण स्थान तक की जो जर्नी है उसमें ये चारित्र मोह जाता है, उससे पहले नहीं। ये सारी की सारी कक्षाएं वहां तक रहती है अपने साथ। वाई इज दैट? क्योंकि जैसे जैसे इसमें देखो मैकेनिज्म क्या है कि जैसे जैसे कषाय की इंटेंसिटी कम होती है वैसे वैसे चारित्र भोग कम, और वैसे वैसे शुद्धता बढ़ती है। तो ओनली व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ कषाय गोज डाउन, darshan moh comes goes down with it, the charity moh goes down with it, and purity of the soul improves opposite to it. तो उस प्योरिटी के लिए इन कथाओं को, इन कथाओं की इंटेंसिटी को कम करना बहुत जरूरी। तो लेट अस इलस्ट्रेट विद, ये मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी कि आदिनाथ भगवान को शायद समय जो था फिर भी राशिराज पूर्ण तक राज करने का विकल्प रहा क्योंकि वो वहां से वो मोक्ष गया। भरत बाहुबली का एग्जाम्पल दिया, ये मतलब ये एग्जाम्पल से श्रद्धा में पूर्णता पर चारित्र की कमजोरी, श्रद्धा में पूर्णता कि मैं हूँ पर चारित्र कमजोर, इसलिए हो सकता है। तो चारित्र मोह को जीतने के लिए कषायों से, इच्छाओं से एक घमासान युद्ध करना पड़ता है। उसकी मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ये घमासान युद्ध आप अनुभव भी करोगे उसको। तो ये जो अगला वाला पार्ट, इसको अगर बहुत मन से और कंसंट्रेशन से सुनना। एक कहानी है एक आदमी की जो, जिसको सिगरेट पीने की बड़ी सख्त आदत। तो जो सिगरेट पीता तो उसको तो लगातार कुछ ना कुछ भी हो,
हाथ में सिगरेट उसके हाथ में जला लेते। तो उसको इतनी सिगरेट पीने की आदत थी कि वो तो उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो वो जो एडिक्शन थी उसको सिगरेट पीने की, वो क्यों थी? क्योंकि वो ही एंजॉयड स्मोक। उसको ऐसा लगता था कि जब मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरी इट हेल्प्स मी रिलीव माय स्ट्रेस, इट हेल्प्स मी फील बेटर। ऐसी ऐसी उसकी मतलब उसमें उसके अंदर ऐसी भावना थी कि सिगरेट की वजह से ये सारी मेरी जो एकदम इंस्टेंट प्रॉब्लम्स है लाइफ की, जब मैं पी के आराम से एक कश लगा के बैठता हूँ तो वो तब दूर हो जाता। तो ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने न जाने कैसे किस संदर्भ में उसने एक डॉक्टर की लेक्चर को सुना। डॉक्टर कुछ लेक्चर दे रहा था, स्मोकिंग के बारे में कह रहा था कि भाई देखो ये स्मोकिंग, जो लोग ये स्मोकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे फेफड़े खराब होते हैं, तुम्हारी हेल्थ खराब होती है, उनको कैंसर हो सकता है। अगला डॉक्टर ने वो सारी उसकी कहानी बताई कि सिगरेट के इल इफेक्ट्स क्या है। पहली बार शायद उसको ये सुनने को मिला या उसकी अटेंशन ऐसी थी कि उसने ये सब सुना। ये सब सुनने के बाद उसको लगा कि भाई ये तो वाकई आई शुड पे अटेंशन टू इट। मैं क्यों इस तरह से सिगरेट पीता रहता हूँ जबकि इतनी बुरी सी। तो ये जो भावना उस डॉक्टर के लेक्चर से सुनने के बाद उसके अंदर आई कि ये खराब चीज है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ उसके अंदर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से उसके अंदर क्या हुआ, उस होकर दर्शन वो चला गया। अभी तक दर्शन वो था क्योंकि वो सिगरेट में सुख मानना, सिगरेट को अच्छा मान रहा था अपने लिए। वो उसकी विपरीत मान्यता थी। अब जिसने उसने ये रियलाइज किया कि ये तो वाकई खराब है, तो उसने जो असली बात थी उसको असली देखा। तो इस वक्त उस अवस्था में उसका दर्शन हो चुका। तो उसने फिर उस दिन विकल्प किया कि यार मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो कुछ भी हो मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं। तो डॉक्टर से वो बाद में मिला, जब लेक्चर दे रहा था उसको उसने बहुत धन्यवाद किया कि आपका मेरी आज आंखें खोली। थैंक यू सो मच फॉर enlightening me about this bad habit that I have। तो मैं आज प्रण लेता हूँ कि मैं आज के बाद से इसको बंद कर दूं। क्यों? मैं वो प्रण कर लेके चला आया। अब थोड़ी देर तो बैठा तो जब चूंकि वो आदत थी, इतनी गहरी आदत थी, फिर अंदर से वो तलब उठी कि भाई कुछ कुछ कमी है, मुझे कुछ करना है, मुझे तो क्या करना है। और सोचता रहा फिर सोचा कि सिगरेट का पैक वहीं पड़ा था, वो लाइटर भी वहीं पर्सनल था, वो सारे साथ वहीं पड़े थे, एस्ट्रे भी वहीं पड़ी। तो उसको देख रहा था। फिर कहने लगा कि इसको देखता रहूंगा तो फिर ही तलब और बढ़ेगी, तो मैं इसको जिसको नहीं देखना चाहता टीवी देख लेता हूँ। तो सैर करने चला गया इधर उधर। फिर आया फिर वो तलब और तेज हुई। हाल 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 ये हुआ कि एक तरफ से तो उसके अंदर ये था कि मुझे नहीं पीनी है, और दूसरी तरफ से ये तलब इतनी स्ट्रांग थी कि फाइनली द तलब टू गो। उसने कहा चलो पीनी तो नहीं है पर निकाल के रख, तो रूम में क्या है। पैक में से वो सिगरेट निकाल, फिर उसको इधर उधर देखता रहा कि पीनी नहीं पीनी। फिर वो तलब और बड़ी तो उसने वो सिगरेट उठा ली। उसने कहा चलो उठा ली, जलाऊंगा पीऊंगा नहीं। मुंह मुंह में लगा दी उसने, उसको सिगरेट लाइटर से जला दिया। तो फिर उसके मन में ये अंदर से इच्छा हो गई कि अरे भाई एक कष्ट लेने में गया, एक कष्ट लेना को सिगरेट पीना थोड़ी हुआ। एक एक कष्ट लेने के बाद को बुझा था। और फिर उसने जी वो जब तक इतनी स्ट्रॉन्ग थी तलब और ये रीजनिंग उसके अंदर से आई, वो उसने एक कलश, एक उसका कष्ट ले लिया। और कष्ट लिया तो एक क्षण के लिए बहुत उसको रिलीफ फील हुआ। और बिल्कुल उसी वो क्षण बीता भी नहीं था कि अंदर से उसके अंदर वो, अरे ये मैंने क्या कर दिया। हरे राम जो नमोकार मंत्र पढ़ा होता क्यों बड़ी सख्त गलती होगी, मैं तो पढ़ लिया था, ये क्या कर दिया मैंने, बड़ा पश्चाताप हुआ उसको कि व्हाट डिड आई डू, व्हाई डिड आई डू दिस।
और इस अवस्था में उसने वो सिगरेट को मोड़ मार के पैक को इधर फेंक के कि मुझे नहीं करना चाहिए, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे नहीं करना। तो ये जो वो कष्ट जब दिया था, तब चारित्र वो अपनी तीव्र उदय थे, और लेने के बाद ये दर्शन वो फिर से उसने उसको वापस याद दिलाया कि ये तो मेरे लिए खराब से एक्चुअली। उस अवस्था में जब दर्शन वो का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ उसके ऊपर, तो उस अवस्था में उसने उसको मोड़ा तोड़ा इधर उधर फेंका, और फिर अब वो तलब पैसे थोड़ी जाए, तो वो चली गई। तो इस तरह से उसकी तरफ देखता, वो सिगरेट पीता है, एक एक कश उठाता, फिर अपने आप वो फील करता। इस इस उदाहरण में एक ध्यान रखना कि ये जो इसने इंटरनली विद इन हिम he created two goalposts, one which was taking him the right direction and the other which was taking him the wrong, and it's a fight between these two, the negative and the positive. Darshan Mo was wanting to keep him straight on the straight and narrow path, कि ये बुरी है, और चारित्र Mo was pulling him in the other direction, कि क्या फर्क पड़ता है, he was giving logic, it's okay, it's okay, ये मन की वो अवस्था है कि क्या फर्क। तो इवेंचुअली उसने अपने आप से एक रेजोल्यूशन किया कि यार मैं एक दिन में 25 सिगरेट पिया, ऐसे थोड़ी एकदम से छूट गई, ये तो बड़ी गलत चीज है। ऐसा करता हूँ कि 25 दिन, अगले दिन सिर्फ 24, उससे अगले दिन 30 पीऊंगा, 30 पीऊंगा। तो क्या क्या हुआ कि वो जो पहली बार जो उसके साथ ये हादसा हुआ कि उसने सिगरेट पी और उसको बहुत बुरा लगा, तो उस बुरा लगने की वजह से जो चारित्र मोह की तीव्रता थी सेकंड टाइम, वो थोड़ी सी कम, जब उसने फाइनली दी तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी पहली बार जब उसको ये ख्याल ही नहीं था कि सिगरेट आपके लिए बुरी। तो इसमें ये ज्यादा फर्क नोटिस करना है कि जब इसने 25 ने कहा कि चल 24 पीता हूँ, तो वो एक तो कम हुई ना, तो उसने उसको उस तलब को उसने सपोर्ट किया, एकदम से एलिमिनेट नहीं किया। उसने कहा मैं धीरे धीरे इसको आई विल ओवर पावर। तो वो जो धीरे धीरे का जो काम है, तो उसका दर्शन वो वाज हेल्पिंग हिम टू कीप दिस ट्रेन while reducing the intensity of the challenge, and eventually इस युद्ध में घमासान में eventually he reached a state, एक ऐसा दिन फाइनली आया जिस दिन उसने सिगरेट नहीं, उस दिन उसने भगवान को बहुत शुक्रगुजार हुआ, भगवान ये बचा दिया, खराब आदत थी। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया ये तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू कि कैसे अंदर की जो ये इसको तड़प है कर ये जो तड़प की जो अवस्था थी, तड़पने की अवस्था थी, ये कषायों की अवस्था थी। ये कषाय इसी तरह से हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जब भी आप कोई रेजोल्यूशन लेते हो कि मुझे नहीं करना है, एग्जैक्टली यू गो थ्रू द सेम स्टेज। इसको सिगरेट लगाओ, इसको मान लो कि मैं गाली नहीं, अगर आपको गाली देने की आदत और आप सडनली कहो कि मैं गाली नहीं दूंगा, क्यों मैं वो थ्रू द सेम, वो निकलेगी मन से, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर कम होगी। बट ये ये जो फाइट है, we have to start this journey, and this journey starts the day you get rid of darshan moh। उस वक्त आपको असली चारित्र मोह की जो इंटेंसिटी है, तब आपको समझ में आती है कि देखो ये तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये घमासान युद्ध हम सबको करना है इस चौथे गुण स्थान से 12-13 मिनट। दैट इज द स्ट्रगल, क्योंकि अंदर ये जो इनको आते लोग है ना, ये जो हमारी आदतें बन चुकी है सोसाइटी में, जीने की, खाने की, पीने की, डांस करने जाने की, जो भी आप जो भी करते हो एक दिन में, पिक्चरें देखने की, ये सारी की सारी आदतें जो आपको आत्मा में स्थिर नहीं होने देती, ये दर्शन मोह की अवस्था है।
और जब जब भी आप ये प्रण लेते हो कि मैं अब ये नहीं करूंगा, यही वाली स्ट्रगल जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की, यू फेस इट। अब सवाल ये है कि आप कितना उसके ऊपर कायम रहते हो, उस रेजोल्यूशन के ऊपर कि मैं इससे नहीं गिरूंगा। गिर गए तो फिर वापस पहले नुकसान, उस उस यार्ड स्टिक से गिरे, वी आर बैक टू गोल्ड स्टार नंबर 1। उस यार्ड स्टिक पे अटके रहे तो यू आर ऑन गोल्ड स्टार 4। दैट्स शाइट समय। तो जब भी तुमने that means all four intensities of the kashaya are present in you, but the day you become firm कि मैं इससे नहीं गिरूंगा और आपकी शाही समय की अवस्था आ गई, तब आपने वो वाला जो अनुदान बनने वाला इंटेंसिटी थी, उसको आपने खत्म कर। अब जो कर्म बंधेगा नहीं, वो उस गहराई का नहीं होगा जो पहले हुआ। सो दैट इज द स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज दर्शन मोह, that we have to finally, you know. So key learning क्या है कि when he was able to finally quit, he thanked Bhagwan. Key learnings क्या है कि the same process of purification of Charitra Moh applies to Muniraj, it applies to Chaute Gonsanvarti, it applies to Pache Gonsanvarti. Rather than saying last secret, we will say कि अच्छा these thoughts move from उस वक्त जो अपनी रोजमर्रा की व्यवहारिक जीवन है, उसमें हम सिगरेट की बात नहीं करते। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो ये कमाने की तलब, ये बीवी बच्चों रिश्तेदारों की जो एसोसिएशन है, जो वो कम होनी शुरू कर होती है, तो अगली अवस्था क्या आती है कि अब चलो मैं ये तो सब मैंने छोड़ दिया, अब मैं देश का भला, ये वाली थोड़ी प्योर स्टेट आई। वहां तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के, मतलब फैमिली के साथ। अब जैसे समधी जी को देखो, समधी ने फैमिली छोड़ दी ना, तो इन्होंने उस अवस्था में तो ये ऊपर उठ गई, क्योंकि अब उनको उस तरह के कर्म नहीं बनते जो कि फैमिली के साथ रह के बिजनेस के साथ रह के, वो सब उन्होंने छोड़ दी। अब वो समधी जी के अंदर ये मतलब देश का भला करने की वाली आदत तो नहीं, उनके अंदर ये है कि धर्म का प्रसार प्रसार करो, कि भाई लोगों को भी सिखाओ ये धर्म क्या है। तो ये भी एक चारित्र मोह की अवस्था, but they are purer than us, but they are still suffering from this thing. तो ये फिर समाज की भला करने के बाद कि धर्म की प्रभावना, तो समझी जी कहाँ तक पहुंची, ये धर्म की प्रभावना वाली स्टेज पे। तो उसको या तो ये कह दो कि वो प्रत्याख्यान वाली स्टेज है उनकी, इंटेंसिटी ऑफ प्योरिटी, हम तो उससे ऊपर वाली पे बैठे, तो वो प्रत्याख्यान वाली स्टेज पे बैठे, प्रत्याख्यान और संजोलन के बीच। तो जैसे जैसे कटाई घटती चारित्र में बढ़ता है, उसके बाद अब जैसे हमारे आचार्य महाप्रभु जी को देखो, उनके अंदर दर्शन वो किस अवस्था में था कि उनको लिखने की आदत, कितनी किताबें लिखी, वो लिखने की आदत थी, उनकी दर्शन हो, लिखने की थी, फिर बोलने की थी। ये वाला जो विकल्प था जब उनका ये घटता है, फिर ये बढ़ती हुई चारित्र की स्थिरता, घटती हुई कषाएं, बढ़ता हुआ चारित्र का आनंद, घटता हुआ चारित्र का मोह, बढ़ता हुआ संवर भिजना और धर्म, और घटता हुआ विभाव। ये ऐसी टाइप रहेगी। तो चारित्र मोह का समरी क्या हुई कि चारित्र मोह वीतरागता का आभास करता है, मीनिंग हमारे आनंद को, हमारे सुख को, हमारी निर्विकल्पता को हमसे छीन लेता। आत्मा में स्थिर न होने चारित्र मोह की अवस्था पैदा करता। तो प्रोसेस टू मूव चारित्र मोह इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिस्क्राइब, कि कषायों को हटाओ, आनंद को बढ़ाओ, संवर निजरा को करो, और फिर विभाव को घटाओ, तो इवेंचुअली So let me just stop here and see whatever question you have before I conclude. तो क्या क्या सवाल आपके मन में उठे, जो आपने लिखे, जो आपको हमने अभी तक जो मेन चीजें आपसे बताई कि the most thing that is bothering us all, keeping us in this life is more delusional state. फिर उस डिल्यूजनल स्टेट के साथ हमने आपको दर्शन मोह के बारे में बताया कि आपने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं। आप तो असल में आप जो भी हो, हर आदमी की एक प्योर स्टेट ऑफ सोल है,
उसको देखो। जैसे जैसे आप दर्शन मोह को दूर करोगे और उस स्टेट का अनुभव करोगे, तो आपके मन में दूसरे लोगों के प्रति, सब जीवों के प्रति कोई बुरा भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि यू विल स्टार्ट लुकिंग एट देम एज द प्योर स्टेट ऑफ सोल आल्सो। जस्ट लाइक आई एम प्योर स्टेट ऑफ सोल, दे आर प्योर स्टेट ऑफ सोल। तो अपने आप के अंदर आपके अहिंसा अहिंसा की भावना पैदा होगी। इसी तरह से हमने दर्शन चारित्र मोह के बारे में बात की कि कैसे you are involved in this worldly life. So it is the kachais that are keeping you engaged, that are keeping you attracted to whatever you are calling sukh in worldly life is actually not sukh. है तो वो दुख, और उसको सुख मान के आप करते रहते वो चारित्र मोह की अवस्था है। वो धीरे धीरे कम होती है, एकदम से वो कम नहीं होती। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हमने कहा कि हमारा जो लाइफ का पर्पस था, वो सवाल हमने पिछले बार उठाया था। तो हमने सिर्फ लाइफ के हमने कहा कि लाइफ के पर्पस को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो वर्ल्डली लाइफ का पर्पस क्या है और स्पिरिचुअल लाइफ का पर्पस क्या है। तो वर्ल्डली लाइफ का तो आपका आपका अपना अपना डिपेंडिंग ऑन योर परिवार, वट एवर योर कनेक्शन, वो आप अपने आप देखोगे। पर एज फार एज स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न, तो जो आपका लाइफ का पर्पस होना चाहिए, वो होना चाहिए मोह की, ये मोक्ष की रचना करना इस जीवन, इस भाव में। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से द लाइफ पर्पस शुड बी मोक्ष की रचना। मोक्ष तो नहीं कर सकते हो, तो मोक्ष की रचना कर सकते। मोक्ष की रचना करने का क्या मतलब? सम्यक दर्शन कर सकते। अगर सम्यक दर्शन कर लो इस, तो ठीक है, फिर आगे की स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप जो भी भाव में जाओगे उससे आगे की चलेगी। तो इस भाव में कम से कम फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ट्राई टू अचीव सम्यक दर्शन। और जो दूसरा इस लाइफ का पर्पस स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, वो होना चाहिए समाधि मरण। जब मैं मरूं तो समाधि में मरूं, किसी से रोते धोते नहीं। रियलाइज करूं कि एक ही ऐसी अवस्था है जो आती है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, मरता तो शरीर ही है। आत्मा तो हमेशा जीवित ही है और प्योर है, अनगिनत है, गुणी है। उस अवस्था को फोकस करोगे तो जो लास्ट स्टेज आएगी उसमें आपको इतनी चिंता वगैरह नहीं होगी। जो आदमी अज्ञानता में भरा हुआ है, जो आदमी मोह में भरा हुआ, वो क्यों छटपटाता है? वो इसीलिए छटपटा है कि वो ये छूट गया, हमारे ज्ञान में तेरा था ही नहीं कभी। जिस जिसके लिए तू रो रहा है, जिसके लिए तू बिलख रहा है, वो तेरा था कब? था ही नहीं। इसलिए इसलिए हमने कहा कि अवस्था, आखिरी अवस्था में समाधि भरण, और शुरू में जब सब कुछ काम कर रहा है तो कोशिश करो कि आपके जीवन में सम्यक दर्शन का उद्देश्य। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके प्रश्न के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन हो। हाँ जी। हमने ये बोला कि चारित्र मोह और दर्शन मोह दो अपोजिट पिलर्स होते हैं, लेकिन चारित्र मोह को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो दर्शन मोह से ही मिल रहा है बेसिकली। तो ज्ञान अलग है, दर्शन अलग। दर्शन इज सी, ज्ञान इज नोइंग, चारित्र इज डूइंग। चारित्र तो करता है, चारित्र को उस वक्त फिर से सवाल पूछना। सो वो दो ऑपोजिट पिलर है, चारित्र और दर्शन। लेकिन जो चारित्र मोह है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि सिगरेट, उसको तलब धीरे धीरे हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि उसने दर्शन मोह में ये देखा था कि उसकी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो रही है। तो चारित्र मोह नहीं, स्टिल ड्रोव हिम टुवर्ड्स। उसने सिगरेट पीनी शुरू क्यों की? क्योंकि उसको दर्शन मोह की तीव्र उदय था। वो उसको किसी ने, I mean, I don't know whether you have experienced it or not. I have experienced it. Mine. I used to smoke. कॉलेज में गया, जब फ्रेंड था, दोस्त था, उसने एक सिगरेट लगाई, फ्रेंडशिप में उसने कहा कि तू भी पीने बन गया। मैं तो पीता, तेज तो सही, मैं नहीं पीता हूँ। उन्होंने जो लगा, क्या जाते पी लेते। पहली बार जो मैंने सिगरेट पी और पिया तो इतना चक्कर आया, इतना बढ़ ये, इसको हाउ लाइक दिस। पर उसके बाद
फिर दोबारा किसी बार तो वो चक्कर तो नहीं आया, फिर उसमें वो एक आनंद आना शुरू हुआ। और वो अज्ञानता की वजह से हुआ। वो जो मैंने किया, वो अज्ञानता की वजह से किया। और उसमें जो मैंने सुख माना, उसमें सुख मानना इट्सेल्फ वाज दर्शन। तो ये आदतें जो जो हमारे अंदर, जो हमको यहाँ आना पसंद नहीं लगता, क्योंकि ये बोरियत, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि यार बोरियत होती है वहाँ, समझ में नहीं आता है, हम बदल, ये इतनी, यहाँ ऐसे भी लोग, मुझे नाम तो नहीं दूंगा, मुझे फीडबैक मिला कि लोगों ने कहा कि इतना मुश्किल है, तो सिंपल क्यों नहीं कर देते, इतना कठिन है ये देने का। तो भैया, मैं आपसे कहूंगा कि यू डोंट नो व्हाट कठिन, कि जो सबसे लीस्ट इवॉल्व स्टेट ऑफ सोल है जिसको हम निगोध अवस्था, उस निगोध अवस्था में एक ऐसी अवस्था है जहां जीव एक सांस में 18 बार मरता और जीता है। जो सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस है लाइफ में, वो जीना और मरना है। ये सबसे पेनफुल चीज है, जीना मरना। तो उस निगोध अवस्था में एक सांस में अगर आदमी 18 बार जीता मरता है, तो इमेजिन करो कि कठोर क्या है। और तुम इस सुनने को कठोर, जो तुम्हारी आंखें खोल रहा है, जो तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा है, तुम उसको कठोर के, और उस असत्य को, जो 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 तुम्हारे दर्शन बोध की वजह से है, उसको तुम मजा, किसको मजा नहीं होता है। कुछ मुझे मालूम नहीं कि मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ बोलो ऐसे। So, thank you, Uncle, first of all, for a very impactful lesson. I just wanted to clarify the primacy of darshan, moha versus charitra. So, maybe just similar to maybe what the previous question was. The belief that you can have pure, like, clarity in faith, and then it's purely a journey of clarity in character for purifying your character, right? Is it really that linear and sequential, or the fact that your character doesn't exactly match your beliefs is itself a fact that there is weakness in your beliefs? सवाल अच्छा है। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई दर्शन मोह ना ही पूरा गया हो तो चारित्र को तो कर ही लूं। और सवाल ये है कि ऐसा होता नहीं रियलिटी में। इसीलिए हमने कहा कि अगर, मैंने आपको एग्जाम्पल दी आदिनाथ, आदिनाथ भगवान को पूरा समय था, इसी तरह से भरत को था। उसके बावजूद वो 83 लाख साल तक उस राज गद्दी के पीछे लगे रहे, क्योंकि वो उसकी तरफ, मतलब क्योंकि उनको दर्शन वो उनका पूरा चला गया था। इवेंचुअली स्लोली ही रियलाइज्ड कि this is not the purpose of my life to be ruling. The purpose of my life is to be purifying myself, to purify my conduct. And he saw through, it is the charitra moh in me which is causing this lust in me to continue to rule. तो वो उनमें वो जागरण किसने पैदा किया? वो, क्योंकि उनका दर्शन मोह चला गया। जब तक वो फर्म है, that is why I said that you must establish that goal post कि मैं समझे अपने आप को एक पूर्ण प्योर आत्मा देखना शुरू करोगे, only then you can compare your current actions relative to what you should be doing. Character तो इसमें आता है कि you have to have some reference point to know कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि गलत। जब वो रेफरेंस पॉइंट है तो किससे कंपेयर करोगे उस प्योर अवस्था से, कि अगर मैं वाकई भगवान आत्मा हूँ, अगर मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और अनंत गुणी वाला हूँ, तो क्या मुझे ये शोभा देता है कि ये जो मैं करता फिर रहा हूँ, क्या एक प्योर सोल को ये शोभा देता है? ये तभी कंपैरिजन करोगे, ये सेटल कर दोगे मैं हूँ प्योर। अगर मानोगे तो
यू विल जस्ट यहाँ सब करते हैं, मैं तुम्हारी जस्टिफिकेशन आज तक क्या थी? वो भी करता है, मैं भी करता हूं। क्या बात है? हमको जाना तो एक भी नहीं है। आज काम आदमी जो स्पिरिचुअलिटी में यूज नहीं है, उसका बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज अदर पीपल। वो पैसा कमाता है, मैं भी कमाऊं, उसको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा है। तो उनका लाइफ का पर्पस क्या है? टू बी रिच। और तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या है? तुम्हारा लाइफ का पर्पस है टू इवेंचुअली गेट लिविंग एंड लाइफ। तो तुम्हारा लाइफ का पर्पस ही बदल गया। और जब तक तुम ये पर्पस नहीं बनाओगे, तब तक इस दुविधा में फंसे रहोगे कि ये भी करनी होगी ना। यू हैव टू फॉर्म दैट गोल पोस्ट। आई एम believe in the fact that I am a pure soul. This is the manifestation of the impurities of my अज्ञानता की वजह से ये शरीर है, ये संबंध है, ये संसार है जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ। ये अज्ञानता की वजह से, नासमझी की वजह से ये ठीक नहीं है। जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं आएगा कि इसको बदलोगे नहीं, इसमें बदले। इसका मतलब ये है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मोक्ष, मतलब one feeds the other. And मतलब जब आपको कुछ भी चेंज करना है कहीं पे भी, तो you have to start from the very beginning. Because जैसे आपने बोला ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको देखोगे नहीं बराबर, और देखोगे नहीं तो आप करते जाओगे जो आपको पता है कि क्या आप कर। It begins with purifying your vision, Drishti, and that only happens when you consider yourself as a pure soul with infinite qualities, which is what you are. सच, असल सत्य ये है कि आप एक आत्मा हो, अनंत शक्ति वाली आत्मा हो। प्योर, जो जितने भी हमारे आचार्य हुए, तीर्थंकर हुए, जंगलों में गए, साधना की, वो सत्य निकाल के क्या सत्य निकालते हैं? What did they find? What is the truth? The truth they found was that I am a soul which is pure. और वो उन्होंने आके आपको बताई। अब आप उसको दर्शन मोह की इन्फ्लुएंस की वजह से, इस मोह की इन्फ्लुएंस की वजह से आपको बात समझ में नहीं आती। The fact that you are not able to understand is because of the influence of darshan. The day you, इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए before you can purify, before you can change your character. You cannot change your character without first having pure श्रद्धा। और वो ऐसी अटूट श्रद्धा हो कि इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड, कल को यहाँ एटम बॉम्ब जाए, तो आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, योर फेथ अनशेकेबल। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो हर चीज डरा देंगे, ये खा लेगा, वो ले लेगा, ये मेरा पैसा ले लेगा, ये मुझे लूट लेगा। क्या करेगा ये? तुझे तो कोई लूट ही नहीं, तेरी असलियत को कोई, तेरे पास भी पहले भी थी, अब भी है और हमेशा थी, regardless of what state you went to. एक बार ये realization हो गई, and you begin to see yourself, your actions from that perspective, you cannot help but change. Transformation तुम्हारी होगी उस विश्वास के द्वारा। जो आपका दर्शन मोह है वो आपके राइट बिलीफ सिस्टम से कम, और जो चारित्र मोह है वो ऑटोमेटिकली जब राइट बिलीफ होगी then you will do that. Because you will start, they will bounce, that ज्ञान will bounce you. Right. दर्शन ठीक हुआ तो ज्ञान अपने आप, और चारित्र फिर अपने आप को उस स्टेट से कंपेयर करेगा। You now have a reference point against which to compare your matter. कि एक आदमी जो भगवान तो प्योर, हालांकि इस अवस्था में क्या ये सब बातें उसको शोभा देती नहीं देती, तो धीरे धीरे वो एकदम नहीं जाती। चारित्र मुंह पे जाने को बहुत टाइम लगता है, जैसा मैंने कहा। तो उस पर यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर फेथ in order to do this. आलोक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स आई 100% बिलीव इन meditation, whether you do preksha meditation or any meditation. Number 2, you have explained it very well. तो मैं दूसरा हिसाब से सोचता हूँ, क्योंकि अभी आपने
दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय की बात कर रहे थे, तो आई एम थिंकिंग, कैन यू नॉट कोरिलेट इट टू आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? So technically, conscious mind is the darshan moni, and charitra moni is subconscious mind, because we have become habitual of doing the things again and again and again. And whenever we want to do the right thing, our subconscious mind pulls us back, because usko raag mein raag ka maza aata hai. If you tell all of us, we can spend 3 hours of watching a movie because राग में राग का मजा आता है. बट अगर 5 मिनट मेडिटेशन करने का है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड प्योर अवस्था में जाने नहीं देता. डज दैट मेक सेंस? ऐसा है कि जो प्रेजेंट माइंड है, तो जी. सबकॉन्शियस माइंड is we don't use the subconscious input in time. Normally we are operating with the current state of mind. Subconscious, when you are really wanting to achieve something deeply, only then the subconscious mind gets activated and it offers you the solution. And it is a habit, right? If somebody is coming, चलो अभी तो टेस्ला है, ऑटोमेटिक ले आती है, but if I have to go to your house first time, then I'm going with my conscious mind. After 2 rides, I'm driving by subconscious mind. I can listen to the music, I can do anything. So subconscious mind builds all our habits. It's technically programmed in our system. So when we start doing meditation, तो जब भी वो विचार उठता है, तो आपको शरीर को देखना आ जाता है. तो जब भी वो विचार उठता है, तो मेरे को देखना आ जाता है, और फिर मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता है ये ठीक नहीं है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आपको वश नहीं करना पड़ता. यूज द वर्ड वश. आई डोंट बिलीव इन वश करना. आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वश में हो. बिकॉज अभी अगर मैं गाली निकालना चाहूँ, तो मेरे को इमीडिएटली मेरा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड बोलेगा, ये सेंसेशन जब भी उठी कि तू गाली निकाल रहा है, ये नहीं निकालनी चाहिए. बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड इट विद मेडिटेशन. क्योंकि बदन में एक कशिश होती है ना, जैसे राग की कशिश होती है, तो वो जब भी सेंसेशंस होती है हर चीज करने के लिए, तो वो रोक देता है इमीडिएटली, बिकॉज आई कैन रीड माई बॉडी वेरी क्विकली. तो वो जो रीडिंग वाली बात आई, ये आपका दर्शन मोड चला गया, तो That is why I wanted to compare that if you practice meditation, Right. you spend an hour on meditation, then slowly, but हमको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है. तो वो आपकी मतलब दर्शन मोड चूंकि चला गया, तो you can see those things more clearly. Yeah, because there is a fighting between conscious and subconscious, which we say in Janilan is darshan moni और चरित्र. And the second thing, आपने बोला कि भाई हमारे को संथारा करके जाना चाहिए. So I have many times समनी जी ने भी कहा है कि हम रोज रात को टेम्पररी संथारा कर सकते हैं सोने से पहले, कि मैं अभी सब 4 आहार का त्याग करता हूँ जब तक सुबेरे उठू नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सोने के टाइम में आप यू कैन डू इट, आई कैन सेंड दैट, एंड इट्स, बट वो होएगा नहीं until we continuously keep doing it. Otherwise वो मिस हो जाता है. But once you start doing it, it becomes a habit of your life. कि रात को जब भी आप सोने लगे बेड पे, तो आप रात का संथारा ले लोगे, क्योंकि जीवन का तो मालूम नहीं है कि यहाँ से जाते हुए भी खत्म हो जाए, कब खत्म होएगा हमारे को कुछ मालूम नहीं. Thank you. कौन छोटी थी और नानी के संग जब जीती अभी भी छोटी है हमारे लिए तो. आदमी थे, उन्होंने मुझे ये बताया था, और तब से लेके मैं अभी तक रात को सोते वक्त 3 बार का त्याग लेती वेरी गुड. 3 का जो 4 का लेने का है, नहीं, फिर हैबिट बन जाती है ना. अभी जैसे रात्रि को मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, 3 आहार का त्याग करता हूँ, और रात को 11 बजे जब जगते हैं, तो मैं फिर 4 आहार का त्याग कर देता हूँ कि अभी मेरे को अगर उठ भी जाऊं तो पानी नहीं पीने का. That is pretty good what you are doing. So let me finally conclude what we have learned in this last session. So in today's session, we learned the new vision of JVB, which requires each one of us to develop interest in Jain philosophy.
and commit to transforming our lives with a better understanding of ourselves. Now you know who you are. You know who you are, right? All of you. Yourself. Right. We now see the importance of Preksha meditation as an important tool in our journey of self-transformation. उसने जो सबसे आखिर में जो ये कहा कि जब उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और चित्त निर्मल उनका हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आवेश और आवेग को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनको उठता हुआ देख सकता हूँ। ये जो अवेकनिंग आई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये उसी अवस्था में आती है जब मन शांत हो जाए, शरीर शांत है, इंद्रियां शांत है, पूरी शांत अवस्था में इट इज सो सटल दैट अनलेस यू कंप्लीटली कंट्रोल इट यू डोंट फील। वो है आध्यात्मिक अनुभव की अवस्था। इससे प्रेक्षण मेडिटेशन करोगे तो आएगी। We have better understanding of some common words that are वो का मतलब नहीं था तो आपको समझ में आ गया। दर्शन मोह क्या है, चारित्र मोह में उनके रिलेशनशिप क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, द्रव्यमान मन, you have some understanding. We now have a much better understanding of moh in general, the damaging influence of moh. We can now, by the example I shared with you, you should be able to do self-analysis कि किस वक्त आप दर्शन मोह की अवस्था में और किस वक्त आप चारित्र मोह की अवस्था में प्रभावित हो रहे हो, जिसकी वजह से जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। You should be able to identify ये चारित्र मोह मुझसे करवा रहा है, that's why I have to control it. Right? You have that awakening understanding. We have a better appreciation of the role of man, how it influences chitt, why it is important to purify our chitt through everyday practice of Preksha meditation. We now know what experiencing the soul really means. आपने अब आत्मा का अनुभव क्या होता है, अब आपको ये समझ में आई होगी बात, क्योंकि आखिरी अवस्था, आखिरी स्टेज ऑफ प्रेशर मेडिटेशन, जब इन्होंने कहा कि भाई एक चमकता हुआ सफेद रंग को विजुअलाइज कर, उस वक्त जो शांत अवस्था थी, उस वक्त जो ट्रांसमिटिंग स्टेट थी, that is the experience of it. Given how precious human life is, we now have the tools to manage our life better, both in good and bad times. So अब आपके जीवन में कभी भी कोई उतार या चढ़ाव आएगा, और अगर आप उस उतार चढ़ाव को अपनी असलियत who you really are की दृष्टि से अगर आप देखोगे, तो आप अनुभव करोगे कि यार ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है, I am way beyond it. ये तो मेरे जीवन में अगर मैं इस पे बहा तो कर्मों को मानूंगा, और इसको सहा तो कर्मों को काटूंगा और प्योरिटी पे जाऊं। That's how you need to take ups and downs of life. That's the key lesson. We now know that coming to Preksha Center to learn, this is important. We now know that coming to Preksha Center to learn from Sanghi is important, but it is not enough to progress in our spiritual journey. सिर्फ यहाँ आने से spiritual journey नहीं होगी, यहाँ जरूर आओ, क्योंकि यहाँ से प्रेरणा मिलती है, पर घर जाके भी करो तब बढ़ेगी spiritual journey, यहाँ से भी ऐसे नहीं बढ़ेगी। तो जी कितना साइन करें, देखो कितने स्वार्थी हैं हम लोग, कितने स्वार्थी, just let me take a second and let you realize कि कितने selfish हैं। हम लोग यहाँ आते हैं कि समझी यहाँ रहे, हमें सिखाते नहीं से, अरे यार समझी जी ने तो स्पिरिचुअल जर्नी का पाठ किया, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, संसार को छोड़ने की कोशिश की, और तुम चाहती हो तुम्हारे सामने बैठे तुमको ही सिखाते हैं, उनको तो आगे जाना ना जर्नी में, तुम क्यों उनको रोक के रखना चाहते हो? Is it not our selfishness कि वो यहाँ बैठे रहे, वो तो प्रोग्रेस करे ना, और मुझे सिखाते रहो, मैं कैसी अजीब अद्भुत बात। वो आती है तुमको सिखाते, तुम सीखते नहीं हो, और चाहते ये हो कि वो यहाँ मेरे साथ रखती है, वो भी ना जाए। ये करोगे क्या तुम नहीं कर सकते तो उनको तो करने दो। Let her progress in her life. Let her be an inspiration to progress in your life. Why do you want her to be here to teach you all the time? अपने आप से करो। इसलिए
It is important to progress in your spiritual, unless we commit to daily practice of Swadhyaya meditation, you have to do that. Right? Dina sir, tell me this, were you selfish or not? In asking me समझ नहीं आ रहा हो बैठी रहो हमें बताती हूँ क्यों जब तक आदमी नहीं समझ नहीं आएगा आपको समझाएंगे क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में तब तक तो बाकी पर वो पुरानी समझ तुम्हारे सामने आके यहाँ बैठे थे तुमको वही लेक्चर देते हैं और तुम घर पे जाके कुछ करो ना और अगले दिन फिर उसी स्टेज पे आके बैठे ये कहाँ की justification. So anyway, that is hopefully you have a better appreciation of all of this. So I want to thank you profusely for coming and participating. I ask for forgiveness if I was unable to provide the necessary clarification. His philosophy बहुत गहरी है मुझे तो जो थोड़ी बहुत समझ में आई मैंने आपको समझाने की कोशिश की but this is not the end, it's just the beginning. It is much deeper. Or if I unintentionally hurt your feelings, so forgive me for that. Pichani Gopram. Om Arham.